GST scheme for waiver of interest and penalty and recent amendment. And on this subject, our very respected Honorable former President CA Atul Gupta ji is with us. I welcome you, Gupta ji, sir. And as you know, Gupta ji is not a new to our study circle and CA fraternity. He is a former president of ICI, but still my duty to introduce him very briefly for recording purpose, sir. CA Atul Gupta ji serving on the board of IFAC since November 2020, nominated by Institute of Chartered Accountants of India. He has served the accountancy profession for more than 2 decades, widely respected for his strong organizational skill and deep insight in the affairs of profession. He has vast experience in SMP practice, specializing in management consultancy, taxation, specialty GST, ITES audits. During his association with the ICI as a council member since 2013, he served as the president of ICI during 2021 and as vice president during 2019-20. His experience at ICI spent through education, examination, CPD, research, I&D, and system development with a strong focus toward IT architecture. And besides this, I would like to say that during his tenureship, ICI touched a new heights that as he is the only person during behind the ICI automation. And with this automation of ICI, the hindrance of the human got removed, and by this way lakhs of members and students got benefited, and on the click of the mouse they got real time information, whether it is related to COP and constitution certificate and everything. So big salute to our former president Atul Gupta ji, and he's a gem of person, sir. And once again, I welcome Sunil Dhamija ji, Gaurav Gupta ji, and Atul Gupta ji, and all the attendee on behalf of Study Circle. And with this, over to Gupta ji. Thank you, Rajesh ji. Thanks for a nice introduction, and I will only say that there are many inspiration, including you, when you shared me the vision that what we should do in the ICI, and because of the motivation given by the members only, I could contribute whatever little I can contribute. I contributed in the overall development of the profession. Friends, आज का जो टॉपिक है वो मुझे 2 टॉपिक्स पे बोलने के लिए राजेश जी ने आदेश किया है। पहला जो है वो सफारी रिट्रीट का जजमेंट है, जिसमें काफी सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कुलीग्स जो है वो दे रहे हैं। तो आई विश कि चलिए हम इसको थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लें। एंड द अनदर वन इज दैट द recent circular which was issued vis-a-vis this 128A जो हमारी अमेनेस्टी स्कीम है, उसके लिए एक सर्कुलर इशू हुआ है 238 नंबर। तो मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने जो है वो करीबन we will be speaking around 60 minutes to explain you both the aspects and including your questions if any is there. सबसे पहले सफारी रिट्रीट की बात करते हैं, और सफारी रिट्रीट का मैं जो है वो आपको फाइनल कंक्लूजन देने से पहले मैं कुछ रेलेवेंट पैराग्राफ्स या कुछ जजमेंट जो है वो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। तो यू हैव टू बी पेशेंट दैट you may feel that okay, for the next 10 minutes I will be only explaining the legal aspect, and then we will conclude the safari retreat with the final verdict which was given by the Honorable Supreme Court. Now my dear friends, when we talk about the safari retreat judgment, the question क्या था? क्वेश्चन था कि अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई एक्सपेंस कर रहा हूँ, सो लेट अस से गौरव जी का ऑफिस है, या गौरव जी एक या कोई एक्स जो है वो कोई एक फैक्ट्री चलाता है, कोई उस पे सिविल कंस्ट्रक्शन कराता है, उस मॉल बना रहा है, और उस मॉल में वो बाद में लीजिंग के लिए उस मॉल को वो जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को वो किसी को देता है। तो जो उसकी कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा लगा, क्या उसका क्रेडिट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन था जो हमारे सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डील किया। तो जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा सेक्शन बनता है 17(5)D। तो हमारा ये जो रेलेवेंट सेक्शन है जिसमें इस चीज को एम्बार्गो है,
कि आपको, तो लॉ क्या कहता है कि अगर आपने कोई सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई खर्चा किया, प्लांट एंड मशीनरी से, प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड अगर वो खर्चा नहीं है, अगर वो सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड खर्चा किया, आपने किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे दिया या किसी को आपने मटेरियल खरीदा उससे रिलेटेड, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी बात को चैलेंज किया गया कि क्या ऐसा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ और उस बिल्डिंग को मैं रेंट पे देता हूँ, तो उस रेंट पे तो आप मुझसे जीएसटी चार्ज करते हो, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने पे जो मेरे को जीएसटी पे करना पड़ा, आप मुझे उसका क्रेडिट नहीं देते। तो इस बात को चैलेंज करते हुए अल्टीमेटली हमारे सामने ये सफारी रिट्रीट का जो जजमेंट है ये हमारे सामने आया। अब साहब अगर हम लोग सफारी रिट्रीट के जजमेंट के कुछ बेसिक पहलू को समझें, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बात करी कि आप लोग जो है जब लॉ लिखते हैं, 17(5) लिखते हैं या कोई दूसरा लॉ लिखते हैं, तो वहां पर आपने वर्ड यूज किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, वो है प्लांट एंड मशीनरी। मतलब जो है वो अगर आपका कोई खर्चा है जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, मतलब वो प्लांट भी होना चाहिए और वो मशीन भी होना चाहिए। तो एंड मीन्स कि वो जो है दोनों चीजें होनी चाहिए, तब उसका आपको जो है वो क्रेडिट मिलेगा या आप उसको यूज कर सकते हैं या कुछ मिलेगा। लेकिन 17(5)(d) में जब आप लोगों ने वर्ड यूज किया तो एंड वर्ड नहीं है, वो और वर्ड है, प्लांट और मशीनरी। मीनिंग देयर बाय जब हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो क्या हुआ, सपोज कीजिए मैं कार बनाता हूँ, तो कार बनाने के लिए जो मुझे प्लांट लगाना पड़ा जिससे मैं ऑटोमेटिकली कार बना रहा हूँ, कोई मैंने मान लीजिए कोई लेथ मशीन लगाई, तो वो हुआ प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन अगर मैं प्लांट और मशीनरी वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो क्या हुआ, प्लांट एक अलग वर्ड है और मशीनरी एक अलग वर्ड है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई एक्सपेंसिव ऐसा है जो मैंने प्लांट के लिए भी किया, मुझे उसका भी क्रेडिट मिल जाना चाहिए। आप इस बात को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक वर्ड है प्लांट एंड मशीनरी और एक है प्लांट और मशीनरी। तो दोनों वर्ड में अपने आप में डिफरेंस है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब आप लोगों ने 2017 में ये लॉ लेके आए थे, आज मैं 2024 में इसको एनालाइज कर रहा हूँ, और आपने 7 साल तक, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जो लर्नड एएसजी थे उन्होंने बोला नहीं नहीं सर ये तो और को एंड ही बढ़ा जाना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है साहब मेरी बात समझ रहे हैं, कि कोई अगर मशीनरी का स्ट्रक्चर बना रहे हो आप, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई गियर बॉक्स की कंपनी फैक्ट्री डाल दी, तो जो फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं, मशीनरी लगी है, उनको उनको कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है साहब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने 2017 में एक लॉ को लेके आए और आपने आज तक 2024 तक उस और को रिप्लेस करके, अगर गलती भी हुई थी तो आप उस और को एंड कर देते तब तक, तो आपने कभी भी 2017 से 2024 तक उस और को आपने डिलीट नहीं किया और एंड में रिप्लेस नहीं किया। मैं ये मान के चलता हूं कि जो है ये यहाँ पर कोर्ट का जो काम है वो आपको एफिशिएंसी सप्लाई करने का नहीं है, हम लोग जो है वो अब आपको और वर्ड को ही इंटरप्रेट करेंगे। तो नंबर एक बात, प्लांट एंड मशीनरी एक अलग वर्ड है और प्लांट और मशीनरी जो है वो एक अलग संज्ञा है। अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि प्लांट और मशीनरी एक अलग अलग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा क्रेडिट है जो मशीनरी से रिलेटेड है वो तो मिल ही जाएगा, और ऐसा कोई क्रेडिट है जो प्लांट से रिलेटेड है वो भी आपको मिल जाएगा। अब जब बात करते हैं प्लांट की, और प्लांट की अगर हम जनरल डिक्शनरी की बात करते हैं तो उसके अंदर तो जो है वो बुक्स भी आती हैं, पाइप्स भी आते हैं, बहुत कुछ चीजें आती हैं। तो अल्टीमेटली मुझे जो है वो प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा, नर्सरी में बोलूं कि अगर आप कोई सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो अपने आप में प्लांट की डेफिनेशन में आ जाए, ठीक है साहब, प्लांट को कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको समझना कैसे पड़ेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर वो प्लांट की डेफिनेशन में आ जाएगा सिविल स्ट्रक्चर, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज उसको आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जो है इस बात को आगे चले तो उन्होंने जो है वो कुछ जजमेंट को भी रेफर किया। तो जैसे मैं आपको एक जजमेंट बताता हूँ जो उन्होंने रेफर किया, वो था कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज अहमदाबाद वर्सेस सॉलिड एंड करेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स। तो इसमें क्या था कि जब ट्रिब्यूनल में ये मैटर गया तो एक व्यक्ति ने जो है वो एक कुछ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए थे जो हॉट मिक्स प्लांट से रिलेटेड थे। तो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें हॉट मिक्स प्लांट्स वगैरह उनको लगाने थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये अपने आप में प्लांट की डेफिनेशन है। लेकिन इसी तरीके से जजमेंट है ताजमहल होटल 18 का, जिसके अंदर जो है वो इनकम टैक्स को लेकर जजमेंट थी कि क्या इसको प्लांट के रूप में डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए या होटल का जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग के रूप में मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो उन्होंने बोला कि इसको प्लांट ना मान के एक सेपरेट क्लासिफिकेशन जरूर बना दी गई डेप्रिसिएशन के पर्पज से, परंतु इसको प्लांट नहीं माना गया। इसी तरीके से उन्होंने एक और जजमेंट जो है वो डिस्कस किया
जो इंडिया का नहीं है, जेरोल्ड केस है 1887 का, जो ब्रिटिश जजमेंट है। और इसी तरीके से उन्होंने एक और जजमेंट डिस्कस किया जिसके अंदर सीआईटी वर्सेस इंडियन टर्मटाइन एंड रोसिन्स कंपनी लिमिटेड 1970 का जजमेंट है इनकम टैक्स का। ये सारे उन्होंने जजमेंटों को डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंट जो लाइनें, मैं कुछ 5-6 लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ जो आप लोगों को, जो आप लोगों को समझनी है, क्योंकि उसमें क्रक्स है डिस्कशन का। उन्होंने बोला, फर्दर फॉर रनिंग ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज और फॉर कैरिंग ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, फर्दर फॉर रनिंग ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज और फॉर कैरिंग ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस building is required. On occasions, building may be designed and constructed to suit the requirement of a particular industry, trade or business. But that would not make such building a plan. तो क्या कह रहा है वो कि हर एक बिल्डिंग चाहिए, हर एक व्यक्ति को बिल्डिंग चाहिए। आज अगर गौरव जी एक ऑफिस में बैठे हैं तो इनको भी एक बिल्डिंग चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर वो वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं या होटल चला रहे हैं तो वो अपने आप में प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। It only shelter running a such business of such business. For every and each and every business, trade or industry, building is required to carry on such activity. That means building plays some role, and in other words, its function is to shelter the business. But it has no other function except in some rare case, such as dry dock, where it plays an essential part in the operation, which take place in getting a ship into the dock, holding it squarely, and then returning to its river. So building is more durable. If the contention of the SSC is accepted, virtually all such building would be considered to be a plant, and the distinction will be a legislature has made between building and or machinery, or building and machinery or plant would be obliterated. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी आपको, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं हर बिल्डिंग को प्लांट बोल दूंगा तो अल्टीमेटली जो लॉ ने लिखना चाहा वो अल्टीमेटली जो है वो उसका कोई डिफाइन हो जाएगा, पर्पस ही नहीं रहेगा। तो अभी अगर जैसे सपोज कीजिए कि एक शिप है, वो एक शिप जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है केयर करने के पर्पस से, उसको बिल्डिंग क्या करती है, चेन से पूरी बिल्डिंग को पकड़ती है, उसको शिप को पकड़ती है और बाद में उसको रिवर में वापस भेजती है। तो वो अपने आप में बिल्डिंग क्या हुई है, प्लांट की तरह की हो गई। वो अपने आप में शेल्टर नहीं हुआ कि वो आपको अपने ऑफिस के पर्पस के लिए चाहिए, तो वो बिल्डिंग अपने आप में प्लांट हो सकती है, लेकिन हर बिल्डिंग को प्लांट कहना अपने आप में गलत होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि लर्नड काउंसिल फॉर द एसएससी सबमिटेड दैट द वर्ड्स प्लांट एंड बिल्डिंग आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Plant may include in a certain set of circumstances, and therefore applying the functional test, the SSC would be entitled to depreciation under the head. It's more beneficial to it. He submitted that in the modern era, theater building and hotel building are integral part of the operation for carrying out such business, and therefore such building should be considered as a plant. इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हुए और अपनी बात को कहते हुए उन्होंने जो है वो एक बहुत खूबसूरत लाइन बोली। In a particular case which I shared with you in the power generating station, एक जजमेंट और मैं आपको बताना चाहूंगा। कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन का जजमेंट है जी, इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, जो काफी ज्यादा इस केस में रेफर किया गया, जिसके अंदर पावर जनरेटिंग स्टेशन जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो क्या प्लांट होगी या नहीं होगी, इस पे आर्ग्यूमेंट हुआ था और उन्होंने बोला कि यस, ये अपने आप में बिल्डिंग प्लांट के रूप में आएगी। तो उन्होंने बोला उस लाइन में, द कमिश्नर एक्सेप्टेड द करेक्टनेस ऑफ द एसएससी केस. He held that it was clear that the generating station building had to be treated as a plant for the purpose of investment allowance. These buildings could not be separated from the machinery, and the machinery could not be worked without such special construction. He therefore allowed investment allowance in the generating station building as plain. मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो ultimately we therefore have before us a finding of the fact recorded by the fact finding authority that the generation station building is an integral part of the SSC generating system. तो अल्टीमेटली क्या हुआ जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मैं जो है पहली बात क्या कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं प्लांट और मशीनरी पढ़ रहा हूँ। मतलब अगर कोई एक बिल्डिंग प्लांट भी होगी तो मैं उसको जो है वो प्लांट मानूंगा और उसके हिसाब से आपको उसका क्रेडिट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नाउ द कंक्लूजन इज द कोर्ट हैज लेड डाउन द फंक्शनैलिटी टेस्ट। तो क्या होगा जी, अब गौरव जी हमारे को हर बिल्डिंग के लिए एक क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन होगा वो फैक्ट्स पे होगा कि क्या वो बिल्डिंग अपने आप में एक प्लांट के रूप में समझी जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम लोग जो है वो सिंपल भाषा में हर एक बिल्डिंग को अगर ऐसे हम कहने लगे
तो आने वाले टाइम में लोग बोलेंगे स्विमिंग पूल भी जो है प्लांट है, वो अपने आप में जो है वो मूवेबल पार्टीशन भी प्लांट है। तो ऐसे करके अगर हम ऐसे कहने लगेंगे तो प्रैक्टिकली हर बिल्डिंग अपने आप में प्लांट हो जाएगी, बट नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लीजिए डॉक है, अगर मेरा एक स्टीमर जो है वो एक बिल्डिंग में आ रहा है और उसको मुझे बांधना है, अल्टीमेटली मुझे उस बिल्डिंग को इस तरीके से यूज करना है कि वो अपने आप में एक प्लांट की तरह से वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट बन जाएगी, देन ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेम will be allowed as a credit will be allowed on that particular aspect। आप सिंपली बोलें कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे जो है वो मेरे गारमेंट्स रखे जाएंगे या मेरी ज्वेलरी रखी जाएगी जो मेरे कस्टमर आगे खरीदेंगे, और ये मेरा एक प्लांट की डेफिनेशन में आता है। तो उन्होंने बोला द आंसर इज प्रैक्टिकली नो, इन अ कॉमन सेंस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्लांट। तो अल्टीमेटली हमारे को हर केस के अंदर ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी फंक्शनैलिटी, तो हमें हर एक केस में फंक्शनैलिटी टेस्ट करना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग अपने आप में प्लांट की तरह फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो प्लांट की तरह से फंक्शन नहीं कर रही है तो उस केस के अंदर आपको उसका आईटीसी कंस्ट्रक्शन पे नहीं मिलेगा। ऐसा करके इस केस को उन्होंने जो है वो कंक्लूड किया। तो दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ऑल ऑफ यू दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बिल्डिंग बन रही है जिसमें एसेंशियली मान लीजिए वो 1 मिनट के लिए आपको मशीनों को सहारा इस तरीके से दे रही है कि अगर वो बिल्डिंग ना हो तो वो मशीन ऑपरेट ही नहीं कर सकती है, तो उस केस के अंदर ये कहना कि जैसे एग्जांपल है फैक्ट्री की अगर बात करते हैं, तो फैक्ट्री के अंदर अगर सपोज कीजिए मैंने क्रेन इस तरह की लगाई हुई है कि जो मेरी सिविल स्ट्रक्चर से इस तरीके से अटैच है कि मुझे उस क्रेन से सामान को उठाना है और उसके बाद मुझे उसे रिपेयर करना है, इन दैट केस दैट बिल्डिंग विल ऑटोमेटिकली विल बी अ प्लांट। अब इधर क्वेश्चन आया सुनील बवेजा जी का कि क्या कोल्ड स्टोरेज अपने आप में ऐसा होगा, तो आंसर है अपने आप में मेरी ओपिनियन में पूछो तो आंसर है यस, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग अगर नहीं होगी तो आज अगर गौरव जी आपके ऑफिस में बैठे हो, अब आप बोले कि जी ये भी अपने आप में मैं इसके बिगर ऑफिस कैसे चला सकता हूँ, तो मे बी स्टिल यू कैन रन द ऑफिस। आपकी बिल्डिंग ऐसी हो या ऐसी ना हो, बिल्डिंग जो है वो ऊपर से मतलब दीवार अलग भी यदि हो काम चल जाएगा, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो अल्टीमेटली जो मेरे स्टोरेज सिस्टम है वो इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं एक सिस्टम के बिल्डिंग के साथ कि वो अपने आप में उस बिल्डिंग के बिगर को कोल्ड स्टोरेज अपने आप में ऑपरेट ही नहीं कर सकता है। सो प्रैक्टिकली द कोल्ड स्टोरेज कैन बी अ प्लांट, बट अगेन डिपेंड करेगा कि उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या क्या है। तो ये अपने आप में एक अलग बात है। लेट अस से मैंने कहा कि एक रेफ्रिजरेटर मैंने छेड़ रखा हुआ है, तो क्या मेरी बिल्डिंग अपने आप में प्लांट बन गई? द आंसर इज नो, इवन इन द केस ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज। तो वो आपको उसकी संरचना कैसी है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी कैसी है, संरचना कैसी है, उस संरचना के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस आपकी बिल्डिंग को प्लांट माना जाए या नहीं माना जाए। जो खूबसूरत बात यह है कि प्लांट एंड मशीनरी वर्ड नहीं है, प्लांट और मशीनरी वर्ड है, इसलिए इवन खाली एक प्लांट भी हो, इसमें मशीन नहीं भी हो, तो भी वो अपने आप में प्लांट की डेफिनेशन में आ सकता है, एक बिल्डिंग को प्लांट माना जा सकता है और उसके ऊपर जो है वो आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है। बट अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने लेवल पे जजमेंट करनी पड़ेगी, असेसमेंट करना पड़ेगा, और मैटर जो है वो काफी सारा लिटिगेशन में भी जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होगा जो फोर्सफुली जो है दे विल ट्राई टू मेक दिस एज ए प्लांट। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? शायद प्रकुंश तिवारी जी को आवाज नहीं आ रही है, तो आई बिलीव कि आप नहीं, हाँ सर, परफेक्टली परफेक्टली आ रही है, उन्हीं के कोई प्रॉब्लम होगी, हम सबको परफेक्टली आ रही है। चलिए अब सर हम लोग जो है वो सर्कुलर नंबर 238 की बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा ये जो सर्कुलर है अभी जो रिसेंटली इशू हुआ सेक्शन 128A जो अमनेस्टी स्कीम हमारी आई, उसके लिए जो है ये एक सर्कुलर इशू हुआ, और ये सर्कुलर जो है वो करीबन करीबन जो है वो 17-18 पेज का ये एक सर्कुलर है जो गवर्नमेंट ने इशू किया, और उसके अंदर जो है वो 128 से लेकर जितने भी मन में क्वेश्चन थे उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करी। तो मैं उन सब क्वेश्चनों का या जो इतना बड़ा सर्कुलर है उसको समराइज करके मैं अगले 15-20 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपको अपना बोलेंगे। तो सर सबसे पहले एक बात और नोट करने की है कि इस सर्कुलर का जो संबंध है वो नोटिफिकेशन नंबर 21/2024 से भी है, जो 8 अक्टूबर 2024 को इशू की गई थी, जिसमें बताया गया था कि आपको जो है वो बेनिफिट को जो वेवर लेने के लिए जो है वो किस तरीके से आप इस बेनिफिट को आप जो है वो लेना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप सभी लोगों को पता है कि इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जितना भी आपका जो स्कीम क्या है सर, 2017 से लेकर 2030 तक का आपके जितने भी ड्यूज हैं, ठीक है साहब,
आपके लिए उसमें नोटिस आ गया, आपको जो है वो ऑर्डर पास हो गया। पहली बात तो क्या है, हम याद कर लें जो हमारा ओरिजिनल प्रेस रिलीज आया था उसमें क्या था कि अगर आपका खाली नोटिस आया डिपार्टमेंट से तो क्या आप इस स्कीम में जा सकते हैं? आंसर है जा सकता हूं। आपका नोटिस नहीं आया, आपका ऑर्डर भी पास हो गया है, फर्स्ट लेवल पे एडजुडिकेशन भी हो गया है, तो क्या आप इस स्कीम में जा सकते हैं? द आंसर इज आई कैन गो। इवन अगर आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया और आप मैटर अपील में पेंडिंग है तो भी क्या इस स्कीम में आप जा सकते हैं? अगेन द आंसर इज यस, आप जो है वो स्कीम के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए आपका खाली नोटिस आया है, आपका ऑर्डर पास हो गया है, आप अपील का फर्स्ट अपील का ऑर्डर पास हो गया, आप तीनों ही सिचुएशन के अंदर इस स्कीम में जा सकते हैं। पीरियड कौन सा है? 1/7/2017 से लेकर 31/3/2020 का डिस्प्यूट होना चाहिए। और जो अगली इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को याद होगा, पहले मैंने बताई थी, वो ये कि इस स्कीम के लिए 2 व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। नंबर 1, जिस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 74 के अंदर जो है वो डिमांड बनाई गई है, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो फ्रॉड, कोल्यूजन, मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन का जो चार्ज है वो अपने आप में लगा हुआ है। तो दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई ये डिमांड रिफंड से रिलेटेड है, तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपका रिफंड नहीं बनता था और डिपार्टमेंट को लगता है और आपने कोई रिफंड क्लेम कर लिया, तो उस रिफंड की रिकवरी के लिए जो डिमांड बनाई गई है उसके लिए आप इस स्कीम में नहीं जा सकते कि आप बोले जी मैं रिफंड वापस दे देता हूँ, बात को यहीं कहीं खत्म करिए। तो आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दैट। अब सर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और स्कीम का ताना बाना क्या है, क्या क्या इसमें जो बेनिफिट्स दिए गए हैं या कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, उन बातों को लेके जो है करीबन करीबन जो है तो हम लोग जो है वो 18-20 बातें जो है वो हम लोग करेंगे। सर पहली बात ये स्कीम के अंदर जो है वो ये कि आपका जितना भी टैक्स बनता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितना भी आपका टैक्स बनता है वो आपने टैक्स जो है वो 31/3/2025 तक जमा कराना है। तो आपको जो है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, बशर्ते आपका डिमांड जो है वो सेक्शन 73 में है, सेक्शन 74 में नहीं है। अगर आपकी डिमांड सेक्शन 74 में है तो आपको जो है वो केस में भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आप असेसमेंट करवाएं, और असेसमेंट कराने के बाद वो डिपार्टमेंट अगर 74 को ड्रॉप कर दे और सेक्शन 73 में उसको कन्वर्ट कर दे डिमांड को, तो उस केस के अंदर आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सर शुरुआत करते हैं उन 18-20 बातों से जो सर्कुलर में एक्सप्लेन की गई है। पहली बात, अगर आपका ऐसा है कि आपका अभी सिर्फ और सिर्फ शोकॉज नोटिस आया है, आपका कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर जो है वो आपको डिपार्टमेंट को ऑनलाइन जाके एक फॉर्म भरना है सर, SPL 01, स्पेशल SPL 01, ठीक है सर। और अगर आपका ऐसा है कि अगर आपका ऑर्डर आ गया है और आप अपील में है, तो उस केस में आपको जो है वो फॉर्म भरना है SPL 02। ये एक छोटी सी बात है, हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, इसलिए मैं इस बात को और आगे चर्चा नहीं करूंगा। इसके बाद जो है वो ये आपको फॉर्म भरना का टैक्स तो जमा कराना है 31/3/2025 तक, लेकिन आपको जो ये फॉर्म भरना है SPL 1 और SPL 2 जो भरना है वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर भरना है, 31/3/2025 के बाद। मतलब आपको प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 30 जून 2025 तक ये आपको फॉर्म भरना है SPL 1 या SPL 2। और अगर सपोज कीजिए कि आपका 74 का नोटिस 73 में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में आपको जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन ऑर्डर आपको आया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना है SPL 1 या SPL 2। तो ये बात हो गई जी ये फॉर्म भरने की और टैक्स जमा करने की। अब जो है वो अगली बात ये क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने एक अपील फाइल की है ट्रिब्यूनल में, या कमिश्नर अपील के पास फाइल की किया, या इवन जो है वो कोई रिट पिटीशन फाइल की हुई है, या इवन आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि आपने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की है, तो आपको जो है वो जितनी भी आपने अपील फाइल की हुई है या रिट फाइल की हुई है या SPL फाइल की हुई है, स्पेशल लीव पिटीशन, वो आपको विड्रॉ करनी है। और जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उस विड्रॉल के सर्टिफिकेट, तो आपको जैसे आप विड्रॉ करेंगे आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई, ठीक है साहब। तो वो सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपने लास्ट दिन ही जो है वो अपनी जो है वो एप्लीकेशन फाइल करने के दिन आपने अपनी विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाई, तो ऑर्डर आते आते 5-7-10 दिन लग जाएंगे। तो उस केस में आपने जो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है, आपको जो है एप्लीकेशन जो आपने विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाई, आप उसके साथ जो है वो अपनी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगर ऑर्डर आपको नहीं भी आया। आगे चलते हैं सर। उसके बाद वो अगली बात क्या कहता है कि आपने जो है वो
टैक्स जो है वो आपने सपोज कीजिए कि ये स्कीम आई और इस स्कीम के आने से पहले आप लोगों ने कुछ टैक्स जो है वो पहले ही जमा करा दिया। इस स्कीम के आने से पहले तो लेटर से एक व्यक्ति की डिमांड 5 लाख रुपए की बनती थी, वो 2 लाख रुपए ऑलरेडी जमा करा चुका था और अभी उसको ये स्कीम में जाने का है, टोटल 5 लाख की डिमांड है। तो अब क्या होगा जी, तो वो कहता है कि एनी अमाउंट पेड टुवर्ड्स द डिमांड वेदर बिफोर और आफ्टर सेक्शन 128 केम इनटू इफेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज पेड टुवर्ड्स द डिमांड। ठीक है साहब, तो वो अल्टीमेटली जो 2 लाख रुपए आपने पहले जमा करा दिया इस स्कीम के नोटिफाई होने से पहले, सपोज कीजिए डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करते करते बोलता है जी 2 लाख तो आज आप जमा करवाओ, फिर उसके बाद आपका केस आगे बढ़ाएंगे। तो वो 2 लाख रुपया आपका एडजस्टेबल होगा इस 5 लाख रुपए की डिमांड के अगेंस्ट में, आपको दोबारा उसका 5 लाख रुपए जमा नहीं कराना है। इसी तरीके से मान लीजिए सपोज कीजिए डिपार्टमेंट ने कुछ रिकवरी कर ली, आपसे रिकवरी कर ली या आपके बायर से रिकवरी कर ली या आपके वेंडर से रिकवरी कर ली किसी पैसे की। ठीक है साहब, तो वो पैसा भी जो डिपार्टमेंट ने रिकवर कर लिया वो पैसा भी इसमें एडजस्टेबल होगा। तो अल्टीमेटली 5 लाख रुपए के लिए आपने खुद से 2 लाख जमा करा दिए या डिपार्टमेंट ने आप किसी वजह से रिकवर कर लिए तो वो भी एडजस्टेबल होगा और 5 लाख रुपए के लिए आपको बचा हुआ 3 लाख रुपए ही जो है वो आपको जमा कराना है। अब सर अगला एक क्वेश्चन उठाया हमारे एक मेंबर ने और वो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा और वहां पर क्या जवाब आया, उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि मेरा जो है वो कोई ऐसा था कि मैंने टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी जमा करा दिया, ठीक है साहब, और अब मैं इस स्कीम में जाना चाहता हूँ, मेरा कोई किसी वजह से दूसरा कोई टैक्स की लायबिलिटी बची है, तो क्या वो इंटरेस्ट का जो पोर्शन मैंने जमा करा दिया था एक्सेस, क्या मैं वो उसको दूसरी किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूँ इंटरेस्ट और पेनल्टी को? तो वो कहते हैं नहीं। अब आपको जो है वो क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी किसी केस में जमा करा दी, वो आपका गया, अब वो पैसा आपकी किसी लायबिलिटी के लिए जो उस टैक्स की लायबिलिटी के लिए उस पैसे को आप जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। सर अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हमारा जो है वो टैक्स ऑलरेडी पेड, अब जो है वो डिमांड जो है वो केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी की है। तो इफ द डिमांड ऑफ अ नोटिस ओनली पर्टेन्स टू इंटरेस्ट और पेनल्टी एंड द टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड, द टैक्सपेयर कैन स्टिल अवेल द स्कीम। तो वो क्या कर सकता है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी को छुड़वाने के लिए खाली टैक्स की जो टैक्स जमा करा दिया था तो वो उसके लिए जो है वो इस स्कीम को यूज कर सकता है। तो अब क्या होगा जी, हम लोग जो है वो मान लीजिए सपोज कीजिए मेरी 5 लाख रुपए की डिमांड थी, 5 लाख इंटरेस्ट था और 15% के हिसाब से 75,000 रुपए की पेनल्टी की डिमांड थी। वो मैं अभी इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं अगर वो 5 लाख रुपए ऑलरेडी जमा करा चुका हूँ तो अब जब मैं फॉर्म भरूंगा तो वो केवल और केवल मैं ये भरूंगा कि SPL 01 भरा और मैंने बोला जी 5 लाख रुपए ऑलरेडी डिपॉजिटेड था, उसे आप एडजस्ट कर लो, अब मेरा इंटरेस्ट और पेनल्टी मुझे माफ कर दो। तो उस केस में भी वो वैलिड एप्लीकेशन रहेगी, खाली इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए भी आप ले सकते हो अगर पूरा टैक्स ऑलरेडी जमा भी करा दिया है। हाँ ये ध्यान रहे कि ये हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी की, हम लेट फीस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने रिटर्न लेट फाइल करी है और उससे रिलेटेड आपकी लेट फीस ड्यू है, आप उसके लिए खाली स्कीम में जाना चाहते हैं तो आंसर है नो, आप स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये जो है वो टैक्स की डिमांड इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने की डिमांड है, टैक्स आपको जमा कराना है, ये लेट फीस को लेकर ये स्कीम जो है वो अपने आप में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो है आप सपोज कीजिए राजेश जी एक अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की डिमांड है 10 लाख रुपए की, उसे लगता है 5 लाख रुपए में तो मैं मजबूत हूं, मैं केस लड़ लूंगा, ठीक है साहब, और 5 लाख रुपए में मैं कमजोर हूं, तो क्या मैं इस 5 लाख रुपए के लिए स्कीम ले लूं और 5 लाख का केस लड़ लूं? तो उन्होंने बोला नहीं, आपको जो है वो अगर इस स्कीम में जाना है तो आपको 10 के 10 लाख रुपया आपको जो है वो जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज आप 5 लाख के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप 10 लाख के लिए ही लड़ लीजिए, ऐसा एक अपने आप में वो है। तो उन्होंने क्या बोला, द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन 128 इज अवेलेबल ओनली व्हेन द फुल पेमेंट ऑफ द टैक्स डिमांडेड इज पेड, पार्शियल वेवर और सिलेक्टिव वेवर बाय द कंटेस्टिंग पार्ट ऑफ द डिमांड इज नॉट अलाउड। तो ऐसा करके उन्होंने बोला कि आप जो है वो पार्शियल वेवर या सिलेक्टिव वेवर आप नहीं ले सकते, ऐसा करके उन्होंने बोला। उसके बाद सर अगला जो है वो डिमांड रिलेटिंग टू मल्टीपल टैक्स पीरियड की जो डिमांड है वो एक पीरियड एलिजिबल है, तो 2020 तक की भी डिमांड है और 2021 की भी डिमांड है। आपको पता है कि हमारा ये केस जो है 17 से 20 तक का है, लेकिन अगर एक डिमांड 17 से 20 की नहीं है, 17 से 22 तक की बनी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो है वो आप जो है वो द वेवर अप्लाइज ओनली टू द एलिजिबल पीरियड, फुल पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द एंटायर पीरियड इन द डिमांड इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी पीरियड एलिजिबिलिटी। तो उसमें क्या कह रहा है वो इवन आपको अगर जो है ये नहीं कि आप बोलोगे 17 से 20 तक का तो मैं खाली टैक्स जमा करा देता हूँ, इंटरेस्ट पेनल्टी छोड़ दो और 21-22 का मैं लड़ना चाहता हूँ, तो वो कह रहा है नहीं,
आपको उस केस में 17 से 22 तक का पूरा ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा। 21-22 के लिए आप इंटरेस्ट पेनल्टी भी जमा कराएंगे, 17 से 20 के लिए आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का मैं विवरण आपको मैं इस तरीके से दे दूंगा। तो ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना आप सिलेक्टिव वेवर ले सकते हो, ना आप पीरियड वाइज वेवर ले सकते हो, ना आप जो है वो ये कह सकते हैं कि जी मैं कुछ पीरियड की डिमांड को कंटेस्ट करूंगा, कुछ पीरियड की डिमांड को मैं जो है वो एग्री कर रहा हूँ। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल टैक्स पीरियड का भी ध्यान रखना है, पार्शियल वेवर की एक्सपेक्टेशन से वो भी नहीं कर सकते। हाँ, आपने अगर टैक्स पूरा जमा करा दिया तो इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए आप स्कीम में जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो ये कहता है कि जी आपको रिफंड के लिए क्या होगा, कि अगर सपोज कीजिए आप रिफंड के लिए आपकी डिमांड बनी है तो क्या आप उस केस के लिए जा सकते हैं? तो वो कहता है नहीं, जैसा मैंने पहले भी बोला, द वेवर अप्लाइज ओनली टू द टैक्स डिमांड एक्सक्लूडिंग एरनस रिफंड क्लेम्स, द फुल पेमेंट ऑफ द डिमांड इज रिक्वायर्ड टू क्लेम द वेवर। तो आपको जो है वो इस केस में रिफंड के केस में ये स्कीम आपको अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सर एक और चीज वो कहता है कि अगर सपोज कीजिए कि डिपार्टमेंट में आप केस लड़ने गए, 10 लाख का डिमांड था, बाद में डिपार्टमेंट ने उस डिमांड को बढ़ा के 12 लाख कर दिया, ठीक है साहब, जब एडजुडिकेट हो रहा था केस, ठीक है साहब, तो अब आपको 10 लाख जमा कराना है या 12 लाख रुपए जमा कराना है, क्योंकि अब आप अपील में 12 लाख के लिए गए हैं, जबकि ओरिजिनल केस जो था वो 10 लाख रुपए का था। तो वो कहता है कि अगर एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी हमारे अपीलेट या रिविजनल अथॉरिटी ने या डिपार्टमेंट ने जो है वो इम्पोज कर दिया है, तो उस केस के अंदर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 128 इज कंडीशनल ऑन पेमेंट ऑफ दिस एडिशनल टैक्स विद इन 3 months। फेलियर टू पे द टाइम विल एक्चुअली वॉइड द वेवर। तो वो कहता है कि आपको जो अगर वो कोई एडिशनल डिमांड आपको बाद में क्रिएट हो जाती है तो उसको एडिशनल डिमांड को भी आपको अगले 3 महीने में जमा कराना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपने स्कीम का बेनिफिट ले लिया जी मार्च में, ठीक है साहब, इतने में ऑर्डर आ गया और आपकी डिमांड जो है 10 लाख की जगह 12 लाख हो गई अप्रैल में, तो अब आपको अप्रैल में वो एडिशनल टैक्स भी अगले 3 महीनों में जमा कराना पड़ेगा इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो वो ये कहता है कि आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एडिशनल टैक्स बन गया तो वो भी आपको जमा कराना है। स्पेशल ड्यू पेटिशन के बारे में मैं आपको बता चुका, जो अगला उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। अगला वो पूछता है कि क्या ये स्कीम आईजीएसटी के लिए और कंपेंसेशन सेस के लिए भी अवेलेबल है? तो उन्होंने बोला कि यस, ये स्कीम जो है वो आईजीएसटी एक्ट के लिए भी और कंपेंसेशन सेस के लिए भी, दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है। तो जैसे आप सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, ऐसे आप आईजीएसटी और कंपेंसेशन सेस के लिए भी इस स्कीम को यूज कर सकते हैं। एक जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये स्कीम ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए भी अवेलेबल है? तो अगर किसी ने ट्रांस 1 में क्रेडिट अपना क्रिएट किया, ठीक है साहब, और उस आपने 1 जुलाई 2017 को आप अपना क्रेडिट खड़ा कर रहे हैं, उस क्रेडिट को लेकर जो है डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट है कि ये डिमांड जो है ये आपका क्रेडिट नहीं बनता है, तो क्या मैं इस स्कीम में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि आप इस स्कीम में जा सकते हो, लेकिन आपने ट्रांस 1 में क्रेडिट कब खड़ा किया वो डिपेंड करेगा। आपने अपना ट्रांस 1 में क्रेडिट 1 जुलाई 2017 से 31/3/2020 के बीच में क्रिएट किया है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसी ने 2021 में अगर ट्रांस 1 भरा तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो पीरियड पर्टेन पिछले साल का करता है तो उससे वो नहीं बनेगा। तो आपने कब क्रेडिट क्रिएट किया उसके बेसिस पे जो है वो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद वो कहता है कि आपने जो है वो कोई लेट फीस या रिडम्पशन फीस वगैरह के लिए आपको ये स्कीम अवेलेबल है। तो मैं जैसे आपको बता चुका कि ये केवल और केवल उन्हीं केसेस के लिए अवेलेबल है जहां पर पेनल्टी सेक्शन 73 में 122 में 125 में लगी है। लेकिन अगर आपकी पेनल्टी जो है वो आपकी लेट फीस जो है वो रिटर्न वगैरह को लेट फाइल करने के लिए लगी है तो उसके लिए ये स्कीम जो है ये अपने आप में अवेलेबल नहीं है। सर एक और चीज है, ये क्या मैं इस टैक्स को, मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे ऊपर 5 लाख रुपए की डिमांड बनती है और 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेनल्टी बनती है, तो क्या मैं वो 5 लाख रुपया जो है वो मैं आईटीसी से जमा करा सकता हूँ? तो आंसर है यस, आप जो है वो इस 5 लाख रुपए को आईटीसी से भी जमा करा सकते हैं, बशर्ते आपको जो है वो 2 जगह पे आईटीसी यूज करने की परमिशन नहीं होती है। जैसे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी आपको कैश में ही पे करनी होती है, आप आईटीसी से पे नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई रिफंड से रिलेटेड बात है तो रिफंड में भी आपको कैश जमा कराना पड़ता है, आप आईटीसी रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो जहां पर आईटीसी लेने का राइट नहीं होता है वहां पर आप आईटीसी से इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, अदरवाइज आप जो है वो आईटीसी से भी इस स्कीम का बेनिफिट लेके टैक्स को जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कस्टम एक्ट के तहत आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी बनती थी तो क्या इस स्कीम में बेनिफिट अवेलेबल है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, आपको कस्टम एक्ट में अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी बनती थी तो वो उस केस के अंदर अवेलेबल नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब लोगों को समझनी है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था जी 16/5 और 16/6
दो सेक्शंस में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई थी। तो अगर आपने मान लीजिए सपोज कीजिए क्रेडिट ऐसा था जो आपने ले लिया 16/4 के हिसाब से, जो आपको 30 नवंबर तक आप नहीं दे पाए, उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो है वो आपकी डिमांड अपने आप में बनी हुई है। ठीक है साहब, आपने क्रेडिट जो है 30 नवंबर के बाद ले लिया, ये हम बात कर रहे हैं 2017, 18, 19, 18, 19, लेकिन बाद में अभी लॉ अमेंडमेंट आ गया तो आपकी डिमांड बन गई 10 लाख रुपए की। लेकिन 16/5, 16/6 में अमेंडमेंट आने की वजह से आपकी लाइबिलिटी जो है वो 4 लाख से कम हो गई और अब 6 लाख की रह गई। तो उस केस में जो है वो क्या होगा, मुझे 10 लाख पे जाना है या मुझे वो माइनस करके 6 लाख पे जाना है? तो उन्होंने बोला कि आपको माइनस करके नेट अमाउंट जो अब आपका रह गया 16/5, 16/6 का बेनिफिट लेने के बाद जो 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका रह गया, आप उस 6 लाख रुपए के लिए आप इस स्कीम में जा सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने आपको एक एडिशनल बेनिफिट और जो है वो बताया। अब एक और लास्ट पॉइंट जो उस पूरे सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है और मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और वो ये कि उन्होंने बोला कि अगर सपोज कीजिए किसी ने DRC 03 भर दिया, अब DRC 03 भरने के बाद ये स्कीम आ गई, तो क्या वो इस स्कीम में जा सकता है? तो उन्होंने बोला यस, आप जा सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए पहले DRC 03 को भरा दो आपने ना, उसको आपने DRC 03A भर के पहले उस अमाउंट को आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में लेके आना है। उसके बाद आप इस अमाउंट को जो है वो पे कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। सो दैट्स द केस। तो इसलिए जो DRC 03 जिन लोगों ने भर दिया है उनको अब DRC 03A पहले भरना होगा, और उसके बाद जो है वो आपको SPL 02 जो है वो आपको एप्लीकेशन भरने से पहले आपको भरना होगा, और उसके बाद आप SPL 02 जो है वो अपने आप में भर सकते हैं। तो सर ये जो पॉइंट्स थे मैंने बड़े ब्रीफली और ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल मैंने जो है वो राजेश जी एक्सप्लेन करे जो इस सर्कुलर नंबर 238/2024 में आए हैं। मुझे पता है काफी टाइम हमारे पास है, लेकिन जो महत्ता थी उस पॉइंट की, जो एक्सप्लेनेशन लोगों को हम बड़े सरल भाषा में कर सकते थे, मैंने वो सरल भाषा में सबको एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए अपने आप को ओपन कर सकते हैं कि मेंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हो, तो मैं वो क्वेश्चंस ले लेता हूं, और हो सकता है कि क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन आ गई हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो हमें अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगनी पड़े डिपार्टमेंट से, तो वो हम लोग जो है वो एक बार के लिए सर एक छोटा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। जो स्क्रैप पे अमेंडमेंट आई है ना सर, TDS और GST वाली, वो थोड़ी सी 1-2 मिनट में कवर कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन है उसपे लोगों के। पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज सर, इस प्लीज। टॉपिक को मैं तैयार उस तरीके से किया था मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, तो अभी क्वेश्चन है इंडेक्स 2 का। सर व्हाट अबाउट अ वेयरहाउस व्हिच कैन बी लेट आउट टू वेरियस टेनेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि सर वेयरहाउस जो है वो अपने आप में एक प्लांट नहीं होता है अपने आप में एज सच। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पक्का प्लांट नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल वेयरहाउस जो होता है वो प्लांट नहीं होता है, वो शेल्टर होता है। ठीक है सर, तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ बोला, आपने बहुत सारे जजमेंट का रेफरेंस देते हुए, कि अगर वो एक शेल्टर मात्र है तो उस केस के अंदर जो है वो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वेयर हाउस अपने आप में एक प्लांट की तरह से काम कर रहा है, जो कुछ जिसकी कोई फंक्शनैलिटी भी है, तो जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले एक सर्विस हुआ करती थी इरेक्शन कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन, और उसमें वो कहते थे कि जब मैं 2 जॉइंट को जोड़ूं और वो 2 जॉइंट अपने आप में कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम इरेक्शन बोलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं कोई मैंने पाइपलाइन बिछाई, ठीक है साहब, एक जगह से दूसरी जगह तक, और वो दोनों को मैं ज्वाइंट करने के बाद वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो वो इरेक्शन नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग ये बात कहना चाहेंगे कि वेयर हाउस से अगर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है साहब, तो वो अपने आप में प्लांट है। अगर वेयर हाउस एक शेल्टर के रूप में है सिर्फ, तो वो अपने आप में प्लांट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम होटल की बात करें, तो होटल अपने आप में एक, होटल का इनकम टैक्स में भी एक स्पेशल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, बट नॉट एज ए प्लांट। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि अपने आप में, जो मैंने आपको ताजमहल होटल का केस का रेफरेंस दिया, तो इसलिए जब वहां पर वो अपने आप में प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आया इनकम टैक्स में, तो आज हम GST में उसको प्लांट की डेफिनेशन में लेके जाना चाहें, सो दैट विल बी ऑलवेज एग्रेसिव स्टैंड। तो इसलिए गौरव जी मैं आपको कहना चाहा, आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एवरी पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इधर कोरिलेशन, कि जब मैं इनकम टैक्स में, तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि वो एक बिल्डिंग है, लेकिन होटल बिल्डिंग होने की वजह से मुझे स्पेशल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल रहा है। यहाँ पर मैं बोलूँ नहीं नहीं जी वो प्लांट है, सो दैट्स नॉट अ केस। मनीष जी का एक क्वेश्चन है, ऑर्डर पास बट अपील नॉट फाइल्ड, तो उस केस में जो है वो आपका केस जो है वो अपील वाला ही माना जाएगा, और आप उसमें SPL 02 भरना होगा मनीष जी आपको, ना कि SPL 01।
तो ये आप ध्यान रखें, आप एलिजिबल हैं इस बात के लिए। लेट फीस का वेवर इसमें इंक्लूड नहीं है प्रकाश जी, मैं अभी अभी मैंने आपको बताया, ये केवल और केवल उनके लिए है जहां पर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात है। ये आपकी जो लेट फीस है वो अपने आप में टैक्स से जुड़ा हुआ पेनल्टी नहीं है, वो आपकी रिटर्न लेट फाइल करने से जुड़ी हुई लेट फीस है, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग टैक्स अंडर आईटी एक्ट, देन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। एम आई राइट सर? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने आईटीसी का, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 5 करोड़ की एक बिल्डिंग बनवाई और आपने उसके ऊपर 90,000 रुपया जो है वो जीएसटी पे किया, और उस 5 लाख को साथ साथ आप 90,000 को भी कैपिटलाइज कर रहे हो, तो इन एनी केस आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन को उठाने की मतलब फिर इस जजमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका तो आपने बेनिफिट ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन के लिए दे दिया, तो इसलिए आपको उसका अलग से सेपरेटली जो है वो आपको क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है वो 5वां क्वेश्चन था जिसको मैंने एक बार के लिए आंसर दिया। अगला जो क्वेश्चन है सर वेदर एयर कंडीशन। अब गौरव जी मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, मैंने इसीलिए राजेश जी को मना करा कि हम एक टॉपिक पे ही रहते हैं ताकि लोगों को एक टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। पवन जी एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं, वेदर एयर कंडीशनड वेयर हाउस इज ए प्लांट। अगेन मैं आपको बोलूंगा सर कि अगर अपने आप में सपोज कीजिए कि एयर कंडीशनिंग अपने आप में नेसेसिटी है, वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप ये बोल सकते हो कि यस इट इज ए प्लांट, ठीक है सर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आज गौरव जी के ऑफिस में या राजेश जी के ऑफिस में भी एयर कंडीशन लगा है, वो बोले सर गर्मी में कैसे काम कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो प्लांट नहीं बन गया। आप समझ रहे हैं? तो अगर वो एक कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो उसकी शेल लाइफ को बढ़ाने का काम करता है, तो सर्टेनली, और वो उसके साथ इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट बिल्डिंग क्या मैं ओपन में कोई मैं एयर कंडीशनिंग कर सकता हूं? द आंसर इज नो। सो अगर मैं बोलूंगा कि बिल्डिंग अपने आप में एक एसेंशियल पार्ट है इस मशीनों को, इस ठंडक को मेंटेन करने का, इस कूलिंग को मेंटेन करने का, तो इन दैट केस दैट विल बिकम प्लांट। सो आप मेरी बात को समझिएगा, मैंने एयर कंडीशनिंग लगाया, मैंने उसके चारों तरफ बिल्डिंग बनाई, दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में एक कूलिंग प्लांट बना। सो इन दैट केस देयर इज अ फंक्शनैलिटी, एंड इन दैट केस यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू दैट दिस इज अ प्लांट। अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश जी का, ओनली इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लेविड विदाउट टैक्स डिमांड, देन यस। अगर टैक्स आपकी कोई टैक्स डिमांड नहीं है, यानी कि आपने टैक्स पूरा पे कर दिया, तो आप स्ट्रेट में SPL 01 भर सकते हैं, क्योंकि आपके केस में केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है, टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। सो दिस स्कीम इज फुल्ली वैलिड फॉर यू प्रकाश जी, यू कैन यूज दिस स्कीम ऑफ द 128। आगे चलते हैं सर और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद वेदर SPL 101 एंड SPL 02 हैव बीन नोटिफाइड। अभी जो है वो फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है जी, एज सच नोटिफाई नहीं हुए हैं, पर सर्कुलर और एक्ट नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है कि देयर विल बी अ फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द GSTN पोर्टल इटसेल्फ wherein the SPL 01 and 02 will be available। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। अभी मैं उधर भी ले लेता हूं, चैट में भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गौरव गर्ग जी का, हो गया, कैन वी गेट ITC बिल्डिंग ऑन अ होटल, ये मैंने ले लिया। व्हाट अबाउट वेयर हाउस, ये मैंने ले लिया। Will GST input be available on material consumed in construction of a building of a school which is let out further on rent? The answer is no, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग अपने आप में प्लांट नहीं है। GST is levied on the rent which is received and deposited। तो आंसर नहीं है, आपको नहीं मिलेगा निखिल जी, क्योंकि जो है वो अपने आप में जो स्कूल की बिल्डिंग है वो अपने आप में एक प्लांट नहीं है, इसलिए उसका क्रेडिट जो है वो मेरी ओपिनियन में आपको नहीं अवेलेबल। ओपिनियन डिफर हो सकती है सर अलग अलग लोगों की, आप बोलेंगे नहीं जी उस बिल्डिंग से हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो वो एक प्लांट है, पर मेरा ये मानना है कि ये कॉमन सेंस से अगर बात करें तो क्या स्कूल की बिल्डिंग को प्लांट कह सकते हैं? द आंसर इज नो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, लेट अस, तो जो जजमेंट रेफर किए गए उन जजमेंट में ये बात बोली गई कि लेट अस हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट। Then the question is Roman to everyone. Sir, can you please let us know that how to apply for waiver of interest and penalty if tax amount has been paid as per order and interest and penalties not paid? So SPL 01 भरना है रोहन जी आपको स्टेट में, और आप जो है वो SPL 01 के बेसिस पे सीधा आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर जो है वो इसमें मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन दिया स्टूडेंट प्लान का, उसके बाद मैंने रोहन जी का आंसर दिया इंटरेस्ट पेनल्टी का। रीनू शर्मा, फॉर डिमांड ऑर्डर ऑफ 100 टैक्स ऑफ 50 has already been paid in 3B
Now balance 50 paid through DRC or and get the benefit of 128 yes. So आपने क्या करना है रिंकी की DRC 03 को GRC 03A भर के आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपने लायबिलिटी को बनाना है और उसके बाद वो 50 रुपए जैसे आपने जो पे कर लिया ऑलरेडी, अब उसके बाद ये 128 का बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप फुली एलिजिबल हैं जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा अगला क्वेश्चन है रिंकी का, इफ दी पेड एंड रिपेड टू बिल्डिंग एटसेट्रा आर बुक्ड इन दी प्लीज कैन बी टेक आईटीसी पेड एंड रिपेड टू बिल्डिंग। पेड एंड रिपेड, पता नहीं रिपेड क्या कहना चाह रहे हैं, रिपेयर कहना चाह रहे होंगे। पेड एंड रिपेयर टू बिल्डिंग आईटीसी आप ले सकते हैं, तो अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी लॉ में ही लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ अलग से नया नहीं आया है। तो रिपेयर आपने भी क्लैरिफाई कर दिया, तो आपको रिपेयर एक्सपेंसेस इफ नॉट कैपिटलाइज्ड द क्रेडिट इज ऑलवेज अवेलेबल। अगर वो कैपिटलाइज करते हैं तो आपको उस केस में तभी क्रेडिट मिलेगा जब वो प्लांट की डेफिनेशन में आता है और आपका आंसर जैसे आ ही रहा है कि आता है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थे सारे जो मैंने आई बिलीव I answered all the questions. Gaurav ji, over to you. I believe that I answered all the questions. सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अब जैसे रिक्वेस्ट है किसी को भी चैट में ना डालें, अब Q&A में डाल दें क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को चैट में देखने में थोड़ा स्क्रॉल करने में थोड़ा सा चैलेंज है। देखिए शिवम जी, मैं आपको लाइटर नोट की बात नहीं है, अभी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले लिया कि आपने इसको और रखा हुआ है। अब अगर हम लोग बोले कि नहीं जी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से ये एंड था, ठीक है साहब, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ है ना कि एक सिस्टम का एक मतलब वो बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक विषय पे इतना सब डेलिब्रेट किया, अब आप बोल रहे हो कि नहीं जी डेफिनेशन ही गलत है, वो तो गलती से लिखा गया। सो दैट इज समथिंग आई डोंट वांट टू कमेंट, बट आई बिलीव दैट इज नॉट इन द राइट स्पिरिट। यस गौरव सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे इतना पूरा पॉइंट क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करके एक एक चीज का ऑर्डर दिया है, उसमें क्लियर हर एक चीज लिखी हुई है, तो क्या सर जो कंस्ट्रक्शन जो अभी चल रही है, लोगों जो प्लांट जो लग रही है, जैसे कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है विद पार्किंग विद बेसमेंट एंड एवरीथिंग, कस्टमाइज एसी प्लांट फिक्सचर के साथ, तो क्या whether they people should start taking the ITC for that, or that they should start planning to get the ITC for that? जो अगर कोई कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है गौरव जी, मैंने आपको जैसे बोला कि मानिए कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो अपने आप में प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और उस केस में आईटीसी पहले भी अवेलेबल नहीं था, आगे भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको आईटीसी नहीं क्लेम करना चाहिए, अदरवाइज उसको अननेसेसरी इंटरेस्ट पेनल्टी की लायबिलिटीज आएंगी। ठीक है सर, जैसे कोई मॉल में सर शॉप्स हैं जिसको मॉल को आगे लीज पे उन्होंने शॉप्स दी होती है, उस पे जीएसटी चार्ज तो मैं गौरव जी, मेरी ओपिनियन ये है कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ नॉट ए प्लांट। अगर प्लांट की डेफिनेशन में आएगा तभी उसका क्रेडिट मिलेगा, और मैंने आपको इसलिए बहुत सारे वर्ड्स पढ़ के सुनाए, और मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला कि शेल्टर को आप जो है वो प्लांट नहीं बोल सकते, अदरवाइज एवरी बिल्डिंग विल बी अ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हो सकता है, देखिए ओपिनियन में डिफरेंस आ रहे होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे होते हैं, सेमिनार्स में बोल रहे होते हैं, पर मेरी ओपिनियन जो है मतलब मेरी अपनी एक्सपीरियंस मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विल नॉट बी। हो गया सर, और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, और ले लेते हैं सर, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई हो तो। सर क्यूएनए में क्वेश्चन है कि आईटीसी ऑन रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन। हाँ मैं ले लूँ। आईटीसी ऑन रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन वेदर आई वुड बी एलिजिबल, मेरी ओपिनियन है गुलशन जी कि नहीं मिलेगा, ये प्लांट नहीं होता है, रिजॉर्ट इज नॉट ए प्लांट। और जैसा हमने बोला होटल वाला केस आपके स्क्वायरली एप्लीकेबल होता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका
Srishti Pandey, order passed under section 373. The tax was paid before amnesty scheme. Which form is to be filed? तो मैं आपको ये कहूंगा जी, ऑर्डर पास्ड है आपका, तो इसलिए SPL 02 भरना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया, और आपने क्योंकि टैक्स ऑलरेडी पेड कर दिया है तो आपको बेनिफिट अवेलेबल रहेगा इंटरेस्ट पेनल्टी के वेवर के लिए, आप SPL 02 भरिएगा। और प्रकाश जी क्वेश्चन पूछते हैं, रेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग विल गेट ITC सर? द आंसर इज नो। आपको जो है वो बिल्डिंग रेंट पे अगर आप कोई बिल्डिंग दे रहे हैं और वो बिल्डिंग अपने आप में अगर प्लांट नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉर्मली बिल्डिंग जो है वो रेंटल वाली जो बिल्डिंग होती है, नॉर्मली आई एम यूजिंग द वर्ड, वो अपने आप में प्लांट नहीं होती। और कोई क्वेश्चन किसी का भाई, या बाइंड अप करें? एक क्वेश्चन है सर इंटेक्स 2 का, if a warehouse cannot be termed as plant, then what the Honorable Supreme Court has referred to building for letting and renting purpose. As I mentioned you, Honorable Supreme Court ने किसी भी बिल्डिंग को ना प्लांट बोला है ना किसी को मना किया है। Honorable Supreme Court ने बोला कि आप फंक्शनैलिटी टेस्ट करिए, जो बिल्डिंग आपकी प्लांट की डेफिनेशन में आएगी उसके लिए आपको क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी लोग बिना जजमेंट को पढ़े हुए आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी अब तो बिल्डिंग का क्रेडिट मिलना शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फेवर में आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलत धारणा मत बनाइए। अननेसेसरी आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी, इंटरेस्ट की लायबिलिटीज आ जाएंगी, इसलिए आप लोग जो है वो उसको चीज को मत एक बार के लिए वो फॉलो करिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है वो प्लांट। हेलो, आवाज आवाज कटेगी कि 90 डेज की? सर गुप्ता जी प्लीज, गुप्ता जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने वो बताया सर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है सर कि कोई पर्टिकुलर वो होगा, तो इसलिए जो है वो मैं मेटल स्क्रैप के ऊपर जो है वो राजेश जी एक छोटा सा मैंने PPT बनाया हुआ है, मैं वो PPT आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो PPT आप है ना सर्कुलेट कर दीजिएगा, सो दैट विल क्लैरिफाई। चार्ट बनाया हुआ है मैंने छोटा सा, तो वो चार्ट अच्छा। आप सबको सर्कुलेट कर दीजिए। ठीक है भाई साहब प्लीज। एक सर हमारे गुलशन गुलाटी जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ, मैं उनको। आइए ना प्लीज सर, गुलशन जी को वापस हाँ हाँ, गुलशन जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुलशन जी क्विकली प्लीज, क्विकली गुलशन जी, गुलशन जी आप अपना क्वेश्चन पूछे क्विकली जरा। चलो मुझे लगता नहीं है वो। सर हो गए, कोई और कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो। थैंक यू गुप्ता जी फॉर ए वंडरफुल डेलिब्रेशन ऑन ए very important subject, that is on the decision judgment of the Supreme Honorable Supreme Court, and in a very concise manner you detailed very well. And in last I would like to say that in spite of not in politics, you are always available to the member, and I am the witness. Whenever I called him, he immediately picked the phone and answered the question. And he say, Rajesh, I am always available for the member, and but I am away from the politics. So, sir, is a big thanks and salute to you, sir, as you are still available for the benefit of the member and the student. Thank you very much, sir. Thank you. Please, thank you Rajesh ji, thank you Sunil Thank ji, you. everybody, thank you very much.